Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students, this is class of physics for second year. Students, in the previous lecture we were discussing about some basic concepts of current, electricity. For example, we have studied conductors, insulators, semiconductors, concept of alternating current, concept of direct current, and then we have studied the difference between conventional and electronic current. और उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने कॉन्सेप्ट स्टडी किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर. नाउ स्टूडेंट्स, सो फॉर वी हैव सीन कि जब कभी भी आप एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स किसी भी कंडक्टर के क्रॉस लगाते हो तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है. Now we are going to see the relationship between the applied voltage and the current flowing in the conductor, and this relationship, that is the relationship between applied voltage and current flowing in the conductor, is given by the famous law that you have already studied in your metric class, that is the Ohm's law. So our topic of discussion for today is the Ohm's law. हिस्ट्री इसकी बहुत सिंपल सी है. जर्मन साइंटिस्ट था नेम जॉर्ज साइमन ओहम. इन 1826 ही प्रपोज्ड this law, and this law gives you the relationship between three physical quantities. The first physical quantity is the current I flowing in the conductor, जो किसी कंडक्टर या किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है. सेकंड इज द अप्लाइड वोल्टेज, जो आप लोगों ने वोल्टेज अप्लाई की है जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है. एंड द थर्ड थिंग इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, के उस कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, जो अपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इन तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान हमें रिलेशनशिप दे रहा होता है ओहम्स लॉ. सो इट्स स्टेटमेंट इज़ वेरी सिंपल. द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा होगा, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज as long as temperature of the conductor is kept constant. कि जब तक टेम्परेचर कंडक्टर का चेंज नहीं हो रहा, आप लोग जितना अप्लाइड वोल्टेज है उसी के करस्पॉन्डिंगली करंट फ्लो कर रहा होगा. अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ जाएगा. इट मीन्स दैट करंट डिपेंड्स अपॉन द अप्लाइड वोल्टेज. सो इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स we can write that the current flowing in the conductor, the current flowing in the conductor, that is directly proportional to the applied voltage. The current flowing in the conductor is directly proportional to the applied voltage. Now if I remove this sign of proportionality with a sign of equality, then I have to introduce a constant over here. So simply I can write that the current in a conductor, that is simply equal to some constant times voltage. Okay, if I introduce the value of this constant, I will get simply I, that is equal to 1 divided by R into V voltage, where I is a current in a circuit, V is the applied voltage, and R is the electrical resistance of that conductor. Let us explain this by the help of the figure. So अगेन फिगर में हम लोग उसी तरह से एक सिलेंड्रिकल शेप में कंडक्टर सपोज करेंगे और उस कंडक्टर के क्रॉस हम लोग एक डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर देंगे. सो लेट अस सपोज दैट मेरे पास सिलेंड्रिकल शेप में एक कंडक्टर है. सपोज दैट दिस इज द कंडक्टर. You can also consider it as a wire. So this much conductor is connected across an external voltage source. इसकी वाली साइड let us suppose पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, and its second side is connected with the negative terminal of the voltage source. So here is the complete electrical circuit. This is positive terminal and this is the negative terminal. Suppose that ये जो मैंने वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है ये वेरिएबल है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ. इन द लैब आप लोगों को ऐसे वेरिएबल वोल्टेज सोर्सेज मिलेंगे, जिस तरह जस्ट लाइक आप लोग फ़ैन के डिमर की मदद से फ़ैन की स्पीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे होते हो, सेम लाइक आप लोगों को इस तरह से वोल्टेज सोर्स मिलेगा. उसके जस्ट नॉब को रोटेट करने से आप वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हो, वोल्टेज को कम भी कर सकते हो. सो अगर मैं कन्वेंशनल करंट की बात करूँ, सो कन्वेंशनल करंट विल बी फ्लोइंग लाइक दिस वर्ड
पॉजिटिव टर्मिनल से इनटू द सर्किट में फ्लो करेगा एंड फ्रॉम द सर्किट बैक टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. सो द करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट. आई हैव अप्लाइड द वोल्टेज V. जब ये करंट फ्लो करेगा तो हर मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो कुछ, हर कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी है कि वो कुछ थोड़ी सी अपोजिशन ऑफर करेगा इस करंट I को. सो दैट अपोजिशन विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. कंडक्टर्स जो होते हैं वो बहुत कम अपोजिशन ऑफर करेंगे, इंसुलेटर्स ऑफर इनॉर्मस अपोजिशन. सो दैट इज़ वाई इंसुलेटर्स की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम होती है. सो the Ohm's law gives me the relationship between these three physical quantities, that is current in a circuit, applied voltage and the electrical resistance of the circuit. Now let us understand this Ohm's law by the help of the graph. एक ग्राफ की मदद से हम लोग इस Ohm's law को explain करते हैं. So we are going to represent the Ohm's law by the help of the graph. Since from the statement as well as from the mathematical form we can see that current and voltage are directly related and current is depending upon the voltage. It means that voltage is independent physical quantity while current is dependent physical quantity. इससे पहले आप लोग जब भी ग्राफ स्केच करते थे इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी को x एक्सिस पे रखा जाता है, डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को y एक्सिस पे रखा जाता है. सो ग्राफ भी हम लोग कुछ इसी तरह से स्केच करेंगे. सपोज दैट वी हैव द टू एक्सिस हियर, दिस मच इज़ द y axis and this much is the x axis. This much is the x axis. Here I have origin represented by O. X axis independent physical quantity को represent करेगा, that is the voltage. So x axis पे मैं simply voltage ले लेता हूँ, x axis पे voltage है and y axis पे मैं current ले लेता हूँ. So y axis पे मेरे पास current है, this much is the current. Okay, so now what I can see here from the statement that current flowing in conductor is directly proportional to applied voltage. Means that मैं जैसे जैसे applied voltage बढ़ाऊंगा current बढ़ेगा, जैसे जैसे applied voltage कम करूंगा current कम होगा. So it means that at this point origin के ऊपर अगर voltage 0 है तो current भी 0 होगा, फिर voltage को मैं जैसे जैसे बढ़ाऊंगा current भी वैसे वैसे बढ़ेगा. It means that there is 1-1 correspondence. So you will get a straight line, a straight line sketched between current and voltage, and this straight line makes an angle theta with the x-axis. Okay, now if I see over here from the graph, this graph also tells me कि जैसे जैसे मैं voltage को बढ़ा रहा हूँ, you can see here that इस point पे voltage की ये वाली value है और current की ये वाली वैल्यू है. मैं जैसे ही वोल्टेज को बढ़ाऊंगा, मैं वोल्टेज को इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर लेके आऊँगा. सो आई कैन सी फ्रॉम द ग्राफ दैट करंट आल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग इन अ वेरी सेम मैनर. जितना वोल्टेज इंक्रीज होगा एग्जैक्टली उतना ही करंट इंक्रीज होगा. एंड दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग विच माई मैथमेटिकल फॉर्म इज टेलिंग मी. Okay, now if I complete this triangle, suppose that मैं इस triangle को complete करता हूँ और एक complete figure sketch करता हूँ. Suppose that इस point से मैं इस triangle को complete करता हूँ इस point पे. Okay, अब इससे पहले आप लोगों ने अपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 3 में स्लोप का कॉन्सेप्ट पढ़ा था. यू हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप. स्लोप सिंपली क्या होता है, आपके पास y डिवाइडेड बाई x वैल्यू, y वैल्यू y एक्सिस पे जो आप लोगों ने वैल्यू रखी हुई है डिवाइडेड बाय द x वैल्यू, जो x एक्सिस पे आप लोगों ने वैल्यू रखी है. सो y एक्सिस पे यहाँ पे मैंने क्या वैल्यू रखी हुई है, दैट इज द करंट I, दिस इज द करंट I डिवाइडेड बाय x एक्सिस पे मैंने इसकी क्या वैल्यू रखी हुई है, सिंपली वोल्टेज V. सो इट मीन्स दैट स्लोप इज बेसिकली इक्वल्स टू I डिवाइडेड बाय V. इसके अलावा अगर यहाँ पे मैं इस ट्रायंगल को देखूँ और इस ट्रायंगल से मैं tan ऑफ थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करूँ, सो आई कैन सिंपली राइट tan ऑफ थीटा एज यू नो दैट इट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. सो यू कैन सिंपली सी हियर एंगल थीटा यहाँ पे है, ये क्वांटिटी आपके पास परपेंडिकुलर बन रही है सिंस इट इज़ पैरेलल टू current axis. So my perpendicular would nothing but it would be
VI divided by what is base is actually my voltage, so I by V. It means that slope is equal to I by V, tan of theta is equal to I by V. So simply I can conclude that here slope is actually, or simply I can write tan of theta is what? Tan of theta is actually equal to slope, and the slope is equal to what? I divided by V. I divided by V. Okay. If I would see over here, यहाँ पे V मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मैं अगर V को ला के डिवाइड कर दूँ, if I write this mathematical form in this fashion, I divided by V, this will become equal to 1 divided by R, inverse of or reciprocal of resistance. So slope is what? I divided by V, and I have seen that I divided by V, it is nothing but it is what? Reciprocal of resistance. And the reciprocal of resistance is given a special name, that is the conductance. And this conductance is indicated by symbol capital G in most of the books. So here you have an MCQ, here you have an ET MCQ. The MCQ is simply what? That the slope of current voltage graph, or simply slope of voltage current graph is what? Its graph is reciprocal of resistance, or its graph is simply the conductance. So the MCQ is slope of IV graph, slope of IV graph is means current voltage graph is dash, that is the conductance. Okay. नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस तरह का ग्राफ हर मटेरियल, हर कंडक्टर के लिए स्केच करोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन ही नहीं मिलेगी, बल्कि कुछ मटेरियल्स के लिए आपको स्टार्ट में स्ट्रेट लाइन मिलेगी, उसके बाद उस लाइन का पैटर्न चेंज हो जाएगा, मे बी स्टार्ट से ही उसका पैटर्न चेंज हो। सो यहाँ से हमारे पास दो डिफरेंट तरह की डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट बनता है। द फर्स्ट डिवाइसेस आर कॉल्ड एज द ओहमिक डिवाइसेस, and the second sort of devices are called as the non-ohmic devices. So पहले हम दोनों को डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ohmic devices को डिफाइन कर लेते हैं। सिंपली नेम से क्लियर है, that devices which follow the Ohm's law are called as the ohmic devices. So ohmic devices कौन सी devices होंगी? that follow Ohm's law are called as the ohmic devices. अब I know that जो devices ohmic law को follow करती हैं उनका ये जो slope, उनका ये जो IV ग्राफ होता है that will be the straight line. तो यहाँ से ohmic devices की हम लोग एक और definition भी कर सकते हैं, that devices for which IV graph, that is current voltage graph is simply what? It is simply straight line. Okay, this is what it is, simply the straight line. And second sort of devices that I have are the non-ohmic devices. Okay, what sort of these devices actually are? So मैंने आपको बताया ऐसी डिवाइसेस जिनके लिए IV ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, सच डिवाइसेस आर कॉल्ड एज दी नॉन ओहमिक डिवाइसेस। तो आप जिस तरह से आप लोगों ने ओहमिक डिवाइसेस को दो तरह से डिफाइन किया है, यू कैन आल्सो डिफाइन नॉन ओहमिक डिवाइसेस इन टू डिफरेंट वेज। फर्स्ट इज दैट डिवाइसेस विच डू नॉट follow Ohm's law are called as the follow Ohm's law are called as the non-ohmic devices. Or simply we can define non-ohmic devices as all those devices for which IV graph is not a straight line, for which all those devices for which IV graph
इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन, उसका पैटर्न किसी और पैराबोलिक शेप हो सकता है, किसी तरह का भी शेप हो, किसी तरह की भी शेप हो सकती है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। सो दीज आर कॉल्ड एज द नॉन ओमिक डिवाइसेस। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ थोड़ी सी नॉन ओमिक डिवाइसेस देखते हैं और उनके ग्राफ्स को देखेंगे और उनके ग्राफ्स को इस ग्राफ के साथ कंपेयर करेंगे। द फर्स्ट नॉन ओमिक डिवाइस दैट इज डिस्कस्ड इन योर बुक इज द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब। द फर्स्ट नॉन ओमिक डिवाइस इज फिलामेंट of electrical bulb. So filament of electric bulb. So अगर आप इसके लिए स्टूडेंट्स ग्राफ स्केच करोगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से आपके पास आएगा। आई विल एक्सप्लेन इट्स रीज़न कि इस तरह से ग्राफ क्यों आता है। लेट मी स्केच द ग्राफ ऑफ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब. This is the y-axis and here I have x-axis, here I have origin. Y-axis पे once again dependent physical quantity which is current over here, और x-axis पे independent physical quantity that is voltage over here. So क्या होगा जब आप लोग इसके लिए ग्राफ स्केच करोगे, you will get the shape of graph somewhat like this. स्टार्ट में थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन लीनियर होगी, लेकिन उसके बाद ये इस तरह से बेंड कर जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स होगा क्या, होगा ये कि जैसे ही आप लोग वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हो, सपोज दैट इस पॉइंट पे वोल्टेज था, इस पॉइंट पे वोल्टेज करंट की ये वाली वैल्यू थी, जैसे ही आपने वोल्टेज इंक्रीज़ किया इस पॉइंट पे आए, किसी हद तक तो आपको लीनियरिटी मिली कि वोल्टेज इंक्रीज़ करने के साथ साथ करंट इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन जब आप लोग वोल्टेज की लार्जर वैल्यूज़ पे चले जाओगे, यहाँ पे चले जाओगे, यहाँ पे देखें वोल्टेज की मेरे पास ये वाली वैल्यू बन रही है, और अगर मैं इससे आगे थोड़े से पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आ जाऊँ, इस पॉइंट पे आ जाऊँ, इफ़ आई कंसिडर दिस पॉइंट, then the current has been increased by this much. Here I can see that voltage has increased by the large amount, this much amount, but the current has increased with a very small amount. The reason is that जैसे जैसे आप लोग वोल्टेज बढ़ाओगे फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब में करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो उस बल्ब में नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगी, कोलिजन्स बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऐसे मटेरियल्स की इंक्रीज़ करती है। सो जैसे से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज एक्चुअली द अपोजिशन टू द करंट। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हुई, अपोजिशन टू द करंट इंक्रीज़ हुई, अपोजिशन टू द करंट इंक्रीज़ होगी तो मीन्स के करंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। सो हियर आई कैन सी दैट करंट उस अमाउंट से नहीं इंक्रीज़ कर रहा जिस अमाउंट से वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहा है। सो आई कैन सी दैट कि जो आई वी ग्राफ है फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब दैट जस्ट बेंड्स ओवर ऑन द लार्जर वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज। स्मॉलर वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज के ऊपर लीनियर ग्राफ मिल रहा है ऑलमोस्ट, लेकिन लार्जर वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज के ऊपर मेरे पास ग्राफ जो है वो बेंड करके जा रहा है। नाउ हियर आई हैव ETA 1 to 2 ETA MCQs which I want to discuss with you. The first one is the slope of IV graph for filament of electric bulb at larger values of V. Larger values of V के ऊपर जो IV graph है for filament of bulb at larger values of voltage, the slope of IV graph for filament of bulb is dash, either it increases or it decreases. ओके, अगर आप स्लोप की वैल्यू देखो स्टूडेंट्स, तो स्लोप इज व्हाट, इट इज I डिवाइडेड बाय V, दैट इज 1 over R. सो you can solve this MCQ by the help of this mathematical form. Slope is equal to I divided by V, which is actually equal to 1 divided by R, and which is equal to actually conductance. अब स्टूडेंट्स अगर आप देखो लार्जर वैल्यूज़ ऑफ V के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, करंट की वैल्यू कम इंक्रीज़ हो रही है।
मतलब वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, डिनोमिनेटर ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, जबकि करंट की वैल्यू कम इंक्रीज़ हो रही है, न्यूमिनेटर कम है। मतलब न्यूमिनेटर की वैल्यू कम है, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है, तो स्लोप की वैल्यू ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, स्लोप की वैल्यू डिक्रीज होने लग जाएगी। सो एट लार्जर वैल्यूज ऑफ वोल्टेज द स्लोप ऑफ IV ग्राफ और फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब decreases. So students, we were discussing about the slope of IV graph for the filament of electric bulb, and we have seen that this slope decreases because at larger values of voltage increases by a large quantity but current increases with a small quantity. So denominator बड़ा होगा, numerator छोटा होगा, तो slope जो है वो decrease करेगा. Since slope is equal to conductance, तो slope decrease करेगा, इसका मतलब conductance भी decrease करेगी. Conductance decrease करेगी, conductance और resistance का inverse relation है. So conductance decrease कर रही है तो resistance increase करेगी. So second MCQ, here I have first MCQ. So second MCQ is the resistance of the filament of electric bulb. Resistance of filament of bulb dash at larger values of V. Larger values of V. So at larger values of V, since slope decreases, so conductance decreases. If conductance decreases, then the resistance increases. So the MCQ is simply increases. So this was all about this slope of the filament of electric bulb. Second device which is non-ohmic is the thermistor. Thermistor is actually this basically a conductor whose resistance sharply decreases with increase in temperature. तो अगर आप इसके लिए ग्राफ स्केच करेंगे, so its graph would be simply, हम लोग इस तरह से एक्सिस स्केच कर लेते हैं. दिस मच इज द y axis and this much is the x axis. Here at the y axis I have current physical quantity and at x axis I have voltage physical quantity which is independent. So here and here I have the origin. Okay, थर्मिस्टर ऐसी डिवाइस है जैसे जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी. रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी मतलब अपोजिशन टू द इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होगी. अपोजिशन टू द इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होगी मतलब कि करंट बढ़ जाएगा सर्किट में. सो इट्स ग्राफ वुड बी समवट लाइक दिस कि जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो करंट की वैल्यू एक पॉइंट के ऊपर शार्पली इंक्रीज करेगी. हियर वी कैन सी दैट के with increase in voltage the current starts increasing. जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा तो मतलब चार्जेस की आपस में नंबर ऑफ कलिजन्स बढ़ेंगी. कलिजन्स बढ़ने की वजह से टेम्परेचर जो है कंडक्टर का, वी हैव डिस्कस्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट इसी वजह से होता है क्योंकि कलिजन्स होती हैं. कलिजन्स बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा और थर्मिस्टर डिवाइस ही ऐसी है कि जिसका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, करंट बढ़ जाता है. सो वी कैन सी दैट कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा फ़ौरन से जो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट है वो फ़ौरन से राइज करने लग जाएगा. सो अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी सेम ETI MCQs बट दिस टाइम फॉर द थर्मिस्टर. ओके, फॉर द थर्मिस्टर अगर मैं इसी MCQs को फॉर द थर्मिस्टर लिखूँ, एट लार्जर वैल्यूज ऑफ वोल्टेज द स्लोप ऑफ IV ग्राफ फॉर, आप लोगों ने यहाँ पे थर्मिस्टर वाले केस में सिंपली क्या कर देना है, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब के बजाय आप लोगों ने यहाँ पे थर्मिस्टर कर देना है. फॉर थर्मिस्टर डैश. अब अगर आप लोग स्टूडेंट्स थर्मिस्टर के लिए देखो लार्जर वैल्यूज ऑफ वोल्टेज अगर मैं इस वैल्यू को देखूँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे वोल्टेज की ये वाली वैल्यू है और इस पॉइंट पे करंट की मेरे पास ये वाली वैल्यू है. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द करंट I. ओके, मैं वोल्टेज को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, वोल्टेज को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ. सो अगर इस पॉइंट में करंट की वैल्यू देखूँ, सो इट मीन्स ये करंट की मेरे पास वैल्यू आएगी. इट मीन्स कि मैं वोल्टेज में थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है बट मेरे पास एनॉर्मस इंक्रीज़ आया है इन द करंट. नाउ अगर मैं वंस अगेन स्लोप के लिए मैथमेटिकल फॉर्म देखूं, फॉर द स्लोप
we know that slope is equal to I by V, so you can write it I divided by V, and this is equal to 1 over R, and which is equal to G, 1 over R, and this is equal to the conductance. Now here I can see that there is small increase in voltage causes large increase in करंट. सो डिनोमिनेटर यहाँ पे मेरे पास छोटा है, न्यूमिनेटर मेरे पास बड़ा है. सो ये सारी की सारी रेशियो 1 से ग्रेटर होगी. सो मेरे पास स्लोप क्या होगा, वो इंक्रीज कर रहा है. सो फॉर दिस केस द आंसर फॉर दिस एमसीक्यू विल बी इंक्रीजेस. स्लोप मेरे पास इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कंडक्टेंस भी इंक्रीज कर रही है. सिंस स्लोप इज इंक्रीजिंग, सो इट मीन्स दैट कंडक्टेंस आल्सो इंक्रीजेस. नाउ इफ द कंडक्टेंस इज इंक्रीजिंग देन द रेजिस्टेंस, बिकॉज द कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस आर अपोजिटली और इन्वर्सली रिलेटेड. सो कंडक्टेंस बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी. और हम लोगों ने थर्मिस्टर को डिफाइन इस तरह से किया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होने लग जाएगी. तो ग्राफ भी हमें इसी बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रहा है. द लास्ट ग्राफ इज फॉर द सेमीकंडक्टर डायोड, थर्ड इज फॉर द सेमीकंडक्टर डायोड. इस डायोड के बारे में आप लोग आईवी ग्राफ इसका सेमीकंडक्टर्स वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तब भी आप लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे. अभी जस्ट हम लोग ओहम्स लॉ के रिस्पेक्ट से इसके ग्राफ को देख लेते हैं. सो इसके लिए मैं अगर ग्राफ स्केच करता हूँ, सो आई विल टेक द वाई एक्सिस एज द करंट एक्सिस and I will take the x-axis as the voltage axis. So here I have the voltage. ओके अब मैं जैसे जैसे इस डायोड के लिए ये होगा, आप लोग वोल्टेज को इंक्रीज़ करोगे करंट नहीं बढ़ेगा जब तक वोल्टेज की एक खास वैल्यू आपको नहीं मिल जाती. दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज़ कॉमनली नोन एज ए पोटेंशियल बैरियर. जैसे ही आप लोग पोटेंशियल बैरियर से आगे थोड़ा सा वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द डायोड. सो इनिशियली सपोज दैट इफ दिस इज़ द ओरिजिन, दिस पॉइंट इज द ओरिजिन, तो आप लोग किसी हद तक वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, करंट बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस होगा. दिस लाइन इज शोइंग मी दैट आई एम इंक्रीजिंग द वोल्टेज बट करंट इज नॉट बीइंग इंक्रीजिंग. लेकिन एक खास वैल्यू, लेट्स से दिस इज द पोटेंशियल बैरियर विच इज इंडिकेटेड बाय वी पी. वी मीन्स पोटेंशियल, V means potential, Vp whole here means potential barrier. So अगर आप इस पॉइंट थोड़ा सा आगे जाओगे तो करंट फ़ौरन से इस सर्किट में इंक्रीज किया जाएगा. सो इट मीन्स दैट कि हमें एक खास पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए, एक खास वोल्टेज की वैल्यू चाहिए. उस वोल्टेज की पॉइंट से जैसे ही मैं आगे जाऊंगा करंट इनॉर्मसली स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. और इसके लिए अगर मैं ये दोनों MCQ डिस्कस करूँ, द आंसर वुड रिमेन सेम जस्ट लाइक फॉर द थर्मिस्टर. जैसे ही आप लोग लार्जर वैल्यूज़ ऑफ V के ऊपर जा रहे हो, सपोज दैट V की इस वैल्यू के ऊपर मेरे पास करंट की ये वैल्यू है, और जैसे ही मैं थोड़ा सा V को इंक्रीज कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे आता हूँ, सो करंट की वैल्यू मेरे पास इनॉर्मसली इंक्रीज कर रही है, इस पॉइंट पे आ रही है. सो इट मीन्स दैट एट लार्जर वैल्यूज ऑफ V द स्लोप ऑफ IV ग्राफ फॉर द डायोड इज also increases, and since the slope is increases it means that conductance also increases. स्टूडेंट्स ये वाला टॉपिक आप लोग इससे पहले अपनी मैट्रिक क्लास में पढ़ के आ चुके हो. सो इस टॉपिक में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इन ग्राफ्स से अंडरस्टैंडिंग करना, और किसी भी डिवाइस का अगर आपको ग्राफ दे दिया हो उस ग्राफ को आप लोग कैसे डिस्कस करोगे, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है. सो रीड फ्रॉम योर बुक, और बुक के साथ साथ ये जो लेक्चर में मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये पॉइंट्स भी अपने माइंड में रखें. ये ईटीए के जो MCQs हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, इनको एक बार दोबारा देख लें, इनको अच्छे से समझ लें. हो सकता है पेपर में आपको किसी भी डिवाइस के लिए IV ग्राफ गिवन हो और आपसे कहा गया हो डिस्कस करें इसके IV ग्राफ को. तो IV ग्राफ में बेसिकली आप उसके स्लोप को डिस्कस कर सकते हैं, उसकी कंडक्टेंस को, उसकी रेजिस्टेंस को डिस्कस कर सकते हैं, और इनसे रिलेटेड कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं. Inshallah, in the next lecture we will study in detail about the electrical resistance of a conductor. Now before concluding today's lecture, आपकी एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 12.2 फ्रॉम योर लेक्चर. उस एग्जाम्पल में सिंपली आप लोगों ने ओम्स लॉ वाला रिलेशनशिप यूज़ करना है, दैट इज़ I इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R. ये आप लोगों ने रिलेशनशिप यूज़ करना है. वहाँ पे आपको करंट की वैल्यू गिवन है, वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, आपने सिंपली रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सो R विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I. सो
वोल्टेज भी आपको प्रीफिक्सेस में गिवन है, करंट भी प्रीफिक्सेस में गिवन है, इनके यूनिट्स को सेम करके आप लोगों ने सिंपली सॉल्व कर देना है. दैट एग्जांपल इज सॉल्व इन द बुक एंड इट इज़ होमवर्क फॉर द यू. Inshallah, in the next lecture we will study about the electrical resistance. Till that, students, Allah Hafiz. Thank you very much.